Hello. So today we'll be starting thermodynamics. The word thermodynamics itself contains thermo and dynamics. Thermo represents heat or thermal energy, while dynamics represents motion. So this chapter will be regarding the motion of heat energy. Right. Before we dive into this chapter, let's start with heat energy. What exactly is heat energy? तो इसको समझने के एक एग्जांपल लेते हैं. Let's say on a table we have three objects. First one of which is a cup of coffee. Something like this. So this cup of coffee is completely filled with coffee and it is very hot, as you can see, right? So on compared to this, we have a wooden block on the same table. Okay, let me take one more object for comparison. We have an ice cube on the very same table. So now we have three objects on the same table. The difference between all three objects will be the amount of heat energy that they contain. For example, मैं बोल सकता हूँ ये वाला मेरा comparatively ज़्यादा hot होगा. This one will be comparatively cold, and this one will be somewhat between both of this, because obviously this will be hot, right? This will be cold since it is ice. Ice is normally below 0 degree Celsius. So उसके नीचे वाले फेज में वो उसके नीचे ये फेज एग्जिस्ट करता है. 0 डिग्री के ऊपर होगा तो वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा. तो ऑब्वियस सी बात है, ये मेरा होगा कोल्ड, ये मेरा होगा हॉट, एंड दिस वन विल बी समवेयर इन बिटवीन. दिस वुडन ब्लॉक विल बी एट लेट्स से रूम टेम्परेचर, राइट? So it will be wrong to say that whether one is hot or cold. Obviously, when we compare all three, we can say that this is hot, this is cold, this is in between somewhere, right? But the ability to sense of a person also come into role play when we say which is hot and which is less hot. For example, अगर मैं एक कप ऑफ कॉफी किसी को दे दूँ, राइट? यहाँ पे मैंने रेफरेंस के लिए तीन ऑब्जेक्ट रखे. सो इस केस में इट इज इजी फॉर मी टू से दैट ये हॉट है, ये कोल्ड है. बट अगर मैं सिर्फ ये इस एक को हम ध्यान में रखें, लेट्स से, ठीक है, फॉरगेट द अदर टू, लेट्स टॉक अबाउट दिस कप ऑफ कॉफी. सो अगर मैं किसी इंसान को बेचता हूँ कॉफी को टच करने या फिर ई कप को टच करने के लिए, टू एंड आई विल टेल हिम लेट मी नो दैट वेदर इट इज हॉट और नॉट. तो वो पर्सन पर डिपेंड करेगा कि इट इज हॉट और नॉट. किसी को बहुत गर्म लगेगा, किसी को बोलेगा नहीं इतना अभी भी गर्म नहीं. जैसे आपको पता रहेगा, कुछ लोग बहुत गर्म कॉफी पी सकते हैं, कुछ लोग को कॉफी को कोल्ड कॉफी करने इतना ठंडा करने के बाद पीते हैं. सो पर्सन के सेंसिंग एबिलिटी पे होगा. सेम गोज विथ कोल्ड ना. ये आइस मेरा काफी ठंडा है, बट स्टिल वो पर्सन के सेंसिंग एबिलिटी पे डिपेंड करेगा. जैसे कुछ लोग जो होते हैं ठंडी काफी बेयर कर सकते हैं, कुछ लोगों के लिए थोड़ा टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा हो जाता है. तो अभी आपने टेम्परेचर लो किया तो दे स्टार्ट शिवरिंग. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज द सेंसिंग एबिलिटी विल वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. सो इट इज नॉट ईजी टू जज on a person's point of view whether an object is hot or not, because that can't be reliable, right? So what we did, in order to have accurate measurements, we defined this. हमने इसको यूनिट दिया हीट के मेजरमेंट को, जिसको हम कहते हैं टेम्परेचर. मेनी पीपल हैव कंफ्यूजन व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर. व्हाट इज टेम्परेचर? टेम्परेचर इज मेजरमेंट ऑफ हीट. व्हाट अमाउंट ऑफ हीट एन ऑब्जेक्ट विल हैव, that will tell me temperature. So it may vary from person to person कि ये गर्म है या नहीं है. कोई बोलेगा ये गर्म है, किसी के लिए ज़्यादा गर्म होगा, किसी के लिए कम गर्म होगा. बट when I say temperature, temperature तो सबके लिए सेम ही होगा. If I say this is at 35 degree Celsius, now 35 degree Celsius can be hot for someone, can be cold for someone, can be okay for someone, but ये मेरा एक अच्छा comparatively एक better तरीका मेजर करने का. तो मैं टेम्परेचर से डिनोट कर सकता हूँ कि उस बॉडी में कितना हीट है. Getting me? So this is 35 degree Celsius. Let's say this is at room temperature. Let me denote it by around 25 degree Celsius. Ice ये 0 डिग्री से नीचे होगा. Let's say at present it is -2 degree Celsius. Getting me? So what is temperature? Temperature is measurement of heat. So इन तीनों में अलग अलग अमाउंट ऑफ हीट है. अब क्या होगा, ओवर द टाइम अगर मैं तीनों को एक सराउंडिंग में रखता हूँ, सेम सराउंडिंग में रखता हूँ, जैसे कि यहाँ पे जो इनके आसपास का जो एयर होगा, जो एटमॉस्फेयर होगा, उस एटमॉस्फेयर के साथ इन तीनों का एक्सचेंज ऑफ हीट होगा.